न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಇಡೀ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 27ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಾಳೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುಂತು 10 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಗೆ ಭಾಳ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಯಿದ್ ಅವರು, ರೈಲ್ವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ಇವರು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿಗಳು ಈ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಈ ಬಂದ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿ ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ, ರೈತರಿಗಿಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ನಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಯುವ ರೈತ ನೇತಾರ, ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ತಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳೇನಾದರೂ ಜಾರಿ ಆದರೆ, ನಾಳೆ ಬಂದೇನಾದರೂ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂಗೆ 4 ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತಹ ಮುಜಾಪುರ್ ನಗರದ ಮಹಾಪಂಚಾಯತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೈತ ಏನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹೋರಾಟ ಬರೀ ರೈತನದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. मैं सारे अपने भाई और बहनों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ किसानों का नहीं है. ये आंदोलन इस देश का हर एक नागरिक, बूढ़े बुजुर्ग, युवा और जो बच्चे हैं और आगे जाके जो नस्ल आने वाला है, उन सब के लिए आज ये किसान लड़ रहा है. आज ऐसा एक माहौल बन गया है देश में कि मैं अगर कोई एक प्रश्न पूछूं तो मुझे बोला जाता है ये देशद्रोही है. अगर मैं उठ के कुछ बात करूं तो मुझे बोलते हैं ये हिंदू विरोधी है. ये संविधान मुझे ये एक हक देता है कि मैं पूछूं, राइट टू स्पीच के इसमें से, राइट टू आस्क क्वेश्चंस में, राइट टू लिव में से मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूं बोल के ये संविधान मुझे बताया है. या ये 2 ही चीज हो सकता है, या तो जो लोग अभी इस देश चला रहे वो संविधान को नहीं मानते, नहीं तो मैं गलत रह सकता हूँ, संविधान को मैं समझा नहीं होगा. दोनों में से एक तो कोई तो सच रहेगा. इसमें कौन सा सच है आप लोग डिसाइड कीजिए.
इधर एक दो तीन जो ऐसा कानून है जो स्पेशली इस देश का अमीर से अमीर तक लेके एक जो कुछ भी नहीं है, एक गरीब जो आदमी है वहां तक सबको एक मैं क्या बोल सकूं, उनका भूख का व्यापार करने जा रहा है। वो कैसे? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बोल के एक कानून है। वो अभी कानून क्या था और क्या करने जा रहे हैं या क्या कर चुके हैं मैं वो बोलता हूँ। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यह था कि कोई एक कंपनी या कोई एक आदमी इतने ही पैमाने पे अनाज को स्टोर कर सकता है, खरीद के अपने पास रख सकता है बोल के एक रूल था। अभी इन्होंने क्या कही, अभी ये क्या करने जा रहे हैं, ये रूल को ही चेंज करने जा रहे हैं। ये करने जा रहे हैं कि कोई भी कितना भी अनाज अपने पास रख सकता है बोल के नया कानून लेके आने जा रहे हैं। आप सोचो, जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकता है। मैं किसान हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं जो अभी उगाता हूं खेत में उसका एक रेट फिक्स करो। मालूम है मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं किसान हूं, मगर पूरा सत्ता आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है। आप साइंटिफिकली एक रेट फिक्स करो कि एक टमाटर उगाया तो ये इतना होता है, गेहूं उगाया तो इतना होता है, प्याज उगाया तो इतना होता है। आप डिसाइड करो, डिसाइड करके उसको कानून के अंदर लेके आ जाओ। ओके? अगर वो किसान को एक प्याज या गेहूं बेचने के टाइम में जो खरीद रहा है वो उतना पैसे नहीं देगा, तो एटलीस्ट वो जाके अपने कोर्ट को बोलेगा, देखो भैया मैं ये उगाया था, ये आदमी आके मेरे पास लिया, सरकार आप जो सरकार ने इसका इतना रेट फिक्स किया था, इसने मुझे चीट किया है। प्रेसिडेंट ये कानून को साइन करके एग्जैक्टली 1 साल होता है 27 सितंबर को। तो उसी दिन के लिए हमने ये जो आपने किया है हम उसको मानते नहीं है बोलने के लिए पूरे देश में हमने एक भारत बंद बुलाया है। मैं सब सारे मेरे दोस्त भाई लोगों को हाथ जोड़ के यही पूछता हूँ, विनम्रता में रिक्वेस्ट करता हूँ कि 27 को मंडे को 10:30 को आप लोग गन्नौज के पास प्लीज आइए। हम 10:30 को उधर जमा होके तकरीबन 11-11:15 के आसपास से, क्योंकि हमारे भाई लोग नंजनगुड़ से, नरसीपुर से, दूसरे तालुक से सभी आ रहे, तो आके उधर इकट्ठा होके उधर से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 11-11:15 तक हम उधर से निकल के कॉरपोरेशन ऑफिस के तरफ से जाके अरसू रोड में जाके उधर से वापस शिवरामपेट रोड में आके सयाजी रोड एंटर करके वापस हम धनवंतरी रोड से डीसी ऑफिस जा रहे हैं। डीसी ऑफिस जाके उधर हमारे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को ये कानून से लोगों को कैसे होगा, क्या होगा, कितना मुश्किल है, ये क्यों नहीं करना है, ये सब लिख के, और एक अभी 10-15 लेटर तो हमने भेज दिया है, अब तक कुछ हुआ नहीं है। और एक बार हमारा वो हम कोशिश जारी रखेंगे। ओके? और हमारा दिल्ली में एक नारा है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जो किसान लोग दिल्ली में बैठे हैं उन लोगों को इधर से ये पैगाम भेजिए कि वो लोग अकेले नहीं है, हम सब साथ में मिलके अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के लिए अभी हम इधर से एक न्याय सम्मत का आंदोलन करेंगे। सर, पिछले कई दिनों से आप ये कोशिश करते आ रहे हैं कि 27 तारीख को भारत को बंद करना है, तो आपकी जो ये इतने दिनों की कोशिश ये क्या कह रही है कि आपको कितने हद तक सफलता मिलेगी सर? सर, सफलता मिलने तक तो हम डटे रहेंगे, वो तो डिसाइड कर लिया है। नहीं, अभी जो 27 तारीख का जितना भी आपने काम किया है, हाँ, तो कितने हद तक आपको सफलता मिलने की आपको उम्मीद है सर? ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन ने आपने तो पूछ लिया सर। मैं ये मानता हूँ कि आज भी 2-3 भाइयों को मैं वही बोला, वो आके मुझे पूछ रहे थे सर आप तो बंद हो जाएगा तो आप बंद कर देंगे। तो हमने बोला आप बंद करेंगे तो बंद होगा। हमारा ये लेटर आप देखेंगे तो हमने इसमें लिखा है, देश को जो अन्न दिया अन्नदाता उसका विनती है
हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे सर, आपको बंद करना ही है, हमें आके आंदोलन में रहना ही है बोल के हम किसी को नहीं बोल रहे। हम विनती कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए, उनको क्या मुश्किल हो सकता है बोल के। मैं इतना ही सोचता हूँ, ये जो पढ़ने के बाद आपके माध्यम से ये सब देखने के बाद जिनको लगेगा कि हमारा बात सच है वो हमारे साथ आएंगे बोल के, उतना तो मुझे उम्मीद है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। वो उसका एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ जी। कल रात को जब मैं इधर आया शाहिद भाई को मिलने के लिए, तो शाहिद भाई को सुबह बात किया था मैंने, उन्होंने बोला ओके बाद में मिलेंगे, तो शाम को आके इधर मीट किया, ये सब दिखा के हम पूरा डिस्कशन किए। ये देखने के बाद सुनने के बाद शाहिद भाई बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव है। जो सच बोलेगा, जो अगर वो दिल से बोलेगा, कोई सेल्फिश मोटिव के बिना बोलेगा तो दूसरे दिल को पहुंच जाता है। इधर भाषा या मजहब का ये नहीं है, ये भावनाओं का देश है। जैसा कि अब्दुल शाहिद को आपने कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से जो है लॉरी एसोसिएशन के तमाम लोग भी जो है उनकी बात पर बंद कर सकते हैं, अपने काम को रुका सकते हैं। इस तरह आप कौन कौन से ऐसे जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपने? हमने बात किया है, होटल एसोसिएशन से बात किया है, और तो क्या वो अग्री हुए नहीं क्या सर? होटल एसोसिएशन को जो हमने भेजा था वो आज उनका कोई स्टेट लेवल का उनका एक मीटिंग था तो उधर रखा हुआ है, तो वो बोले कि हम इधर बात करके आपको बोल देंगे, तो अभी मैं उनके साथ बात नहीं कर पाया, मैं वो कर रही हूँ। बार काउंसिल एडवोकेट्स को दिया है, देयर वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और कॉमर्स एंड चेंबर्स को हमने जाकर बात करके उनके प्रेसिडेंट से, उन्होंने बोला सर शायद मिक्स रिएक्शन हो सकता है, इसको जो मानते हैं वो बंद करेंगे, जिसको नहीं मानते वो ये नहीं करेंगे, मगर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमने बोला सर हम भी फोर्स नहीं करना चाहते, मैसेज भेज दीजिए जिसको क्या लगता है वो करने के लिए बोल के। और किसको, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये बोला है सर आप बाहर से हमें सपोर्ट करो, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आते हैं तो ये लोग बोल देते हैं ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो वो एक हमें डर भी है, क्योंकि वो ढूंढते रहते हैं कैसे इसको छोड़ा जाए बोल के। तो उसके लिए हमने उनको विनती किया है सर आप हमें सपोर्ट कीजिए, मगर आपके तरीके से कीजिए बोल के वो बोल के रहे। तो मोटा मोटा सारे इंडस्ट्रीज को हमने कुल मिला के अभी जो गन हाउस के पास कितने लोग इकट्ठा होने का जो अंदेशा है सर? सर सिर्फ किसान लोग, हमारा जो कैलकुलेशन है सिर्फ किसान लोग 500 से 700 तक किसान लोग आ जाते हैं। अभी ये जो हमने ये सब आज रिक्वेस्ट दिया है, ये पढ़ के सुन के, और आम आदमी भी कितने लोग ये सोच के आएंगे कि ये जो किसान लड़ रहा है वो हमारे लिए लड़ रहा है बोल के कितने लोग आके ज्वाइन करते देखना है। और सर की तरफ से उनका जो लॉरी एसोसिएशन वाले वो आ रहे हैं, बार काउंसिल मेंबर से भी वो भी ऐड करेंगे, और जो दलित हैं उनको हमने बात किया है, दलित संगठनों को और कार्मिक संगठनों के साथ बात हुआ है, तो वो तो आज भी कुछ रैली कुछ निकाला है उन्होंने, तो एंड होटल एसोसिएशन को मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऐसे सारे एसोसिएशन को हमने टच करके रखा है। सर आपने बताया कि आप जो है दिल्ली जाके आए, तो कर्नाटक से कितने किसान जो है दिल्ली में जाकर वहाँ पे जो है सर कुछ आइडिया है? हमारे यहाँ हमने एक डिफरेंट प्लानिंग किया था, मैं आपके साथ फोटो भी शेयर करूंगा। मुजफ्फरनगर में कर्नाटक का बोल के एक टेंट बनाया हमने। अच्छा, मैं वो फोटो आपको दिखाता हूँ। गाजीपुर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर नहीं सॉरी, गाजीपुर बॉर्डर। मौजूद कितने लोग हैं सर? कर्नाटक से मौजूद कितने लोग हैं उधर? हाँ मैं बोलता हूँ, ओके उधर एक टेंट बनाया जी। और एक चीज हमने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, जिले से एक बार मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 लोग जी एक हफ्ते के लिए जाना बोल के रूल्स बना दिया है। जी जी। अभी ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जाके आए हैं। लेट इसलिए हुआ कि बेलगाम की तरफ थोड़ा फ्लड हुआ तो उसके लिए लेट हुआ था। अभी हाल ही में चित्रदुर्ग आया है, 28 और 29 को हावेरी से निकल रहे हैं, अराउंड 70 और 73 पीपल आर लिविंग। तो एक बैच जाएंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएंगे, तो ऐसा तो कर्नाटका से भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन है। एग्जैक्टली जो वो तो रहना ही है।
अगर इतने लोग अपना जान दे के 500 से ज़्यादा लोग अपना जान दे के उधर लड़ रहे हैं, तो हमारी भी फर्ज बनता है कि जाके उनके साथ रहे और बोले कि हम भी आपके साथ हैं। सर तो आखिरी सवाल सर, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे संविधान है, संविधान क्या आज सुरक्षित है सर? क्योंकि सिस्टम ही बदलाया जा रहा है, तो क्या संविधान भी बदला जाएगा सर? मैं ये बोलता हूँ कि संविधान को बदलने की शक्ति किसी को नहीं है। संविधान हमारे लिए भगवत गीता है, संविधान हमारे लिए बाइबल है, संविधान हमारे लिए कुरान है जी। अगर कोई कुरान, बाइबल, भगवत गीता को बदल सकता हो तो संविधान बदल सकता है। अगर वो नहीं बदल सकता है तो ये भी नहीं बदल सकता है। उतना तो किसी की में हिम्मत नहीं है कि संविधान को कोई बात ना हाथ रखे, वो होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन वो हुआ तो डेमोक्रेटिक, जो पूरे दुनिया को हमने डेमोक्रेसी क्या होता है वो सिखाए हुआ देश जो बोल के अभी हम सीना तान के बोल रहे हैं, वो गवा लेंगे। सर एक छोटा एग्जांपल सर, जैसा हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सेबों की जो हालत हो चुकी है, वैसा आज जो जितने भी हमारे चावल हो या गेहूं हो, उसकी भी वैसी ही हालत अगर हो जाएगी तो क्या करेंगे सर? देखिए भैया, अभी एमएसपी जो हम बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं, उसमें से सिर्फ 23 ग्रेन्स को उसमें रखा हुआ है। इसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, जो हमारा सब्जी जो खरीदते हैं वो नहीं है, तो बहुत सारी चीज नहीं है। तो एक डिमांड ये भी है कि जो भी आदमी, एक किसान धरती से जो उगाता है उसके लिए रेट फिक्स करो पहले, तो उसको मालूम होता है मुझे एटलीस्ट ये मिलेगा, मैं जी सकता हूँ बोल के। नारियल नहीं है। सर के साथ कल बात कर रहा था, वो बोले कि फर्स्ट लॉट में मेरा 17 रुपए में गया, 3 ही दिन में 13 रुपए को आ गया, अभी कल आके 10 रुपए में होगा, तो कोई हैरान की बात नहीं है। तो वो क्यों होता है? वही पेड़ है, वही नारियल है, वही पैसा दिया मैंने। सिर्फ आप लोगों को कब चाहिए वैसा आप मनमानी नहीं कर सकते ना। तो ऐसा अगर आप जो एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल शोरूम में जाके आप रेट डिसाइड करते हो कि वो रेट डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर करता है। तो गेहूं का मैन्युफैक्चरर कौन है? किसान है। तो उसको भी दो यार, वो भी अपना रेट फिक्स करे। वो कि आप लोग समझते हैं कि उसको उतना ये नहीं है, क्या है, क्वालिटी नहीं है। चलो आपके पास साइंटिस्ट है, सारे इकोनॉमिक्स है, एक रेट फिक्स कर दो, हम मान लेंगे उसको। सर क्या अदानी और अंबानी ही रेट फिक्स करने का है, इसमें कुछ अंदेशा दिखाई दे रहा है क्या सर? भाई मैं बोलता हूँ ये अदानी अंबानी जो हम सोच रहे हैं ना, ये ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो वो कितने हैं जी। अदानी अंबानी कुछ भी नहीं है इस देश के लिए। बड़े बड़े पैमाने पे जो ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स, फार्मा माफिया, ये जो लैंड होल्डिंग माफिया जो कर रहे हैं ना, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को, हर एक, अगर एक कंपनी के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को हर एक स्टेट में एक उनका ये चाहिए, क्या होता है, उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना कोई भी कंपनी के लिए। ऐसे इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है ये जी। बस ये ग्लोबल लेवल का नहीं है। हाँ, मगर ये क्या हो जाता है, अगर आप उन्होंने किसी से पैसा ले लिया तो इनको भी उनको थैंक्स बोलना है, को कैसे थैंक्स बोलेंगे? ऐसे वैसे कुछ करके थैंक्स बोल देंगे। सबसे पहले शायद भी आपसे सीधा सवाल करूंगा कि सियासत से सीधा ही आपने रैत संघा के साथ आज जुड़कर उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़े हैं सर, तो आपको सियासत और रैयत में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर? देखो, सियासत खिदमत है, बोलिए जी। सियासत एक खिदमत है। जो सही लगता है, जो सही हमारा हक पूछने वाले साथ में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके साथ में रहकर उनका साथ दे। सियासत आने के वक्त सियासत जो करेगा, जो कौम की खिदमत करेगा, आवाम की खिदमत करेगा, उसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा। वो कभी भी अपने लोगों की खिदमत करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो रैयत, जो पूरे हमारे देश के अंदर जो आवाज़ उठाकर करीबन 1 साल से रोड पर बैठकर 400 से 500 आदमी जो मर चुके हैं,
तो ये सारे लोग सारे मैसूर में ही नहीं पूरे देश में देख रहे हैं। तो आज ये लोग जब रैयत लोग जब अनाज पिकाते हैं तो उन्हीं अनाज को हम खाना है। वो एक दिन का बंद पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ वो सालों से वहां पर बैठे हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक रैयत हूँ, मैं भी, मेरा पिताजी भी रैयत हैं, तो रैयत की मैं बहुत नज़दीक से मेरा करीबी रहा है। तो ये लोग जब रोड पे आए हैं और सारे देश में रोड पर हैं, तो हम जो रैयत पिकाता है वो खाना खाते हैं, वो खाने का एहसान हम चुकाना है। तो इसलिए हमारे जो रेलवे बूशर्ट लारी एसोसिएशन से मैंने सारे मेंबर से बात की और सारे हमारे कमेटी लोगों से बात की। बात करने के बाद हम बूशर्ट 20 को 7 तारीख पीर का दिन बंद करेंगे और हमें इनका साथ देंगे। और सारे जो लोग हैं, कहीं आप देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से कितनी तकलीफें उठाई, लोगों को टैबलेट नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहा था और बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। वो वक्त में जैसा कि हमने खिदमत की केयर सोशल फाउंडेशन खड़कर, उसी तरह से आज ये हमें खाना खिलाते हैं और ये जो अनाज तरकारी और जो काम कर रहे हैं, हमें इसी तरह से इनके साथ खड़े होना है। यहाँ पर किसी का कोई बात नहीं है कि ये पार्टी नहीं है, ये रैयत हैं, ये कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जितने लोग मैंने देखा है कि जब भी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक में हो या सारे हमारे देश में हो, तो रैयत का ये रुमाल डालकर शपथ लेते हैं, ये रैयत का रुमाल डालकर शपथ लेते हैं। इसके बाद रैयत जब रास्ते में है तो कोई रैयत के फेवर में बात नहीं कर रहा। इसलिए हमारे सारे मैसूर के और सारे जो लोग हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दे। और पेट्रोल हो या डीजल हो, हमने कई बार हमारे लारी गन्ना भरने जाते हैं और तरकारी लेकर आते हैं, और बहुत सारे लोग लारी में जो उन्होंने तरकारी पिकाए हुए थे 2 बजे या 3 बजे वो लोड करते हैं, 5 बजे के अंदर मार्केट आना है। तो मार्केट को आने के बाद लारी का भाड़ा देने के बाद उनको 1 रुपया हाथ को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लाबी चल रही है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया, तो अभी हमारा जो अनाज का माफिया ये चल रहा है। तो वो लोगों को हम लारी में अनलोड होने के बाद उन्होंने जो हिसाब डाल के देखते हैं तो कभी लारी का भाड़ा भी पूरा नहीं आता, वो आंखों में पानी डालकर जाते हैं। तो हक आदमी का साथ देना हमारा भी हक बनता है, हमें भी इनके साथ जुड़कर उनका साथ देंगे। तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल और सियासत के माने भी हमें खिदमत करना है। तो खिदमत में जहाँ भी मुझे दिल चाहता है वहाँ पर मैं खिदमत कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक लगाने की किसी में ताकत नहीं है। तो मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ खड़ा हूँगा और इनके साथ हमारे सारे जो साथी हैं और हमारे जो लारी वाले हैं और मेरे जो साथी हैं, उनको सारे साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनके प्रोटेस्ट में आकर जुड़े। और ऑटो वाले भी बहुत सारे हैं और टेम्पो वाले हैं और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ऑफिस वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर मैसूर डिस्ट्रिक्ट यूनियन भी, वहाँ पर भी मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर साथ दे रहे हैं। और सारे जो हमारे एक अनाज पिकाने के आदमी को जब हम साथ देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे दिल को बहुत बड़ी खुशी होगी। और ये नहीं रहेंगे तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा,
तो ये हमारे सारे साथी समझकर इनका साथ दे। सर कि कुल मिला के कितने लारियां जो है उस दिन रुकेंगी सर? सर कम से कम हमारे यहाँ पर 700 लारियां हैं। 700 लारी भी ये पूरे लोग आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं? 100% हमारे यूनियन में बात होकर है और यूनियन के मेंबर से बात होकर है और कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है कि पीर का दिन 27 तारीख को रेलवे गुशट पूरा बंद रहेगा और जो साथी जो दुकानों वाले हैं उन्होंने भी वहां से तरकारी लेके आते हैं और अनाज भी लेके आते हैं, तो वो लोगों भी इनका साथ दे तो उनको भी कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ हैं। वो काम करने की वजह ही उनकी रोजी रोटी है। आज इनकी रोजी रोटी का मामला है तो इनकी रोजी रोटी के साथ हम खड़ेंगे तो हमें भी ये लोग रोजी रोटी देंगे। सर क्या ये लोग अपना सिर्फ कारोबार बंद कर रहे हैं, क्या ये लोगों के साथ वहाँ गन हाउस में शामिल भी हो रहे हैं सर? नहीं, बहुत सारे लोग गन हाउस में शामिल होने की बात चल रही है। इनके साथ हमारे भी साथी जुड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और सारे देश के अंदर सारे लोग देख रहे हैं और ये रैयत अगर बाहर आया तो क्या हालत होकर है दिल्ली के अंदर सब लोग जानते हैं। तो अभी पूरा देश खड़ा हो रहा है और जो ये अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि देशद्रोही है, पहले कहा मुसलमानों को देशद्रोही, अभी रैयत को देशद्रोही कर रहे हैं, कल दुकानदारों को देशद्रोही कहेंगे, तो फिर देश प्रेमी कौन है? जो लोग देश प्रेमी बोल रहे हैं मेरे हिसाब से वही देशद्रोही हैं, क्योंकि देश वालों को देशद्रोही बोलना वो भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे हिसाब से ये हमारे सारे रैयत लोगों को हम साथ देना है और मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि वो सारे जुड़कर इनका साथ दें। और एक मुझे ताज्जुब का ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री उस दिन पार्लियामेंट में बोले कि मैं एक फ़ोन कॉल अवे हूँ बोल के। जी। उनके कुछ चंद किलोमीटर के दूर पे लाखों पैमाने पे किसान बैठ के चीख के बुला रहे हैं, ये नहीं होता है, ये ठीक नहीं है बोल के। इतने चीखों के बीच में से अंबानी का पोते का जो पैदा होने का चीख होता है ना, वो एक्चुअली अच्छा है। जब कोई अच्छा ना बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी का माहौल है, वो क्रय करता है। मुंबई का क्रय इधर पहुंच गया मगर दिल्ली का क्रय कभी भी पहुंचा ही नहीं है। मुझे अभी भी आज भी ताजुब है कि कैसा हो गया। वो बच्चे का वो रोना सुन के इन्होंने फ्लाइट पकड़ के मुंबई भी चले गए वो बच्चे को देखने के लिए। इधर किसान मर रहे हैं, चिल्ला के मर रहे हैं, इनको देखने भी उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक मुझे बहुत ताजुब दिख रहा है। देखेंगे उनको कभी ये चीज भी सुनाई गया या उनका मोबाइल वन फोन कॉल अभी जो बोल रहे हैं, अगर इनका नंबर मिल जाता है तब उनसे बात करने का ट्राई करता है। शायद जियो का नेटवर्क अभी उन लोगों तक पहुंचा नहीं है। कोई तो नेटवर्क पहुंच जाए तो वही आशा है हमारा।